السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو اندر لیکچر۔ آج کے اس لیکچر میں آپ لوگ کے ساتھ 20 سے آگے جو ایم سی کیوز ہیں ان کو شیئر کرنے جا رہا ہوں، اور آپ لوگ اس لیکچر کو اینڈ تک دیکھیے بغیر اسکپ کرنے سے۔ سو لیٹ سٹارٹ۔ ایم سی کیو نمبر 21 میں کہتا ہے کہ ارکان نماز کی تعداد کتنی ہے؟ اس میں کہتے ہیں کہ ہمارے پاس نماز میں ایک ارکان ہوتے ہیں، ایک شرائط ہوتے ہیں۔ نماز میں ٹوٹل فرائض جو ہے، مطلب نماز کے ہم فرائض کی بات کرتے ہیں تو نماز میں 13 فرائض ہوتے ہیں، جن میں سے 7 ارکان ہوتے ہیں، جبکہ باقی 6 شرائط ہوتے ہیں۔ تو یہ اس سیکیوز میں صرف ارکان نماز کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ نماز میں ارکان کیا ہوتے ہیں۔ تو نماز میں جو ارکان ہے وہ ہے 7۔ سو کریکٹ آپشن از بی، 7۔ نیکسٹ سیکوز میں کہتے ہیں 22 میں کے مطابق کچھ شک نہیں کہ نماز بے حیائی سے رکتی ہے۔ تو اس میں کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ یہ ایک حدیث ہے، کچھ شک نہیں کہ نماز بے حیائی سے رکتی ہے۔ تو یہ حدیث ہے، یہ آیت ہے، یہ حدیث قدسی ہے، یہ اللہ رضا کے قول ہے۔ تو دیکھو یہ ہمارے پاس 21ویں پارے میں قرآن میں جو آیت ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے رکتے ہیں۔ لہٰذا یہ کیا ہے؟ یہ ایک قرآنی آیت ہے، لہٰذا کریکٹ آپشن از بی، آیت۔ ایم سی کیوز 23 میں کہتے ہیں قواعد کے روسی شاہراہ اسم کی کون سی قسم ہے؟ وہی اس میں کہتے ہیں کہ گرامر کے قواعد کے روسی، مطلب اردو کے جو گرامر ہے اس کے روسی، یہ شاہراہ لفظ جو ہے، یہ شاہراہ لفظ جو ہے نا، یہ کون سا اسم ہے؟ تو دیکھو شاہراہ ایک جگہ کا نام ہے، اور جگہ کو ہم اردو میں مکان بھی کہتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ اسمی ظرفی مکان، لہٰذا کریکٹ آپشن از بی، اسمی ظرفی مکان۔ مطلب شاہراہ ایک مکان، ایک جگہ کا نام ہے، لہٰذا ظرف مکان ٹھیک ہے۔ ایم سی کیو 24 میں کہتا ہے کہ مثالی معاشرہ قواعد کے روسی کیا ہے؟ مثالی معاشرہ، مثالی معاشرہ ایک لفظ ہے، یہ قواعد اردو کے گرامر کے روسی کیا ہے؟ تو دیکھو مطلب یہ کیا ہے؟ ایک معاشرے کی صفت ہے۔ تو صفت کے لیے جو اسم ہم استعمال کرتے ہیں اس کو ہم اسمی صفت کہتے ہیں، لہٰذا جو کریکٹ آپشن ہے وہ بی ہے، اسمی صفت۔ ایم سی کیوز 25 میں کہتا ہے a room having 5 meter length and 3 meter breadth یعنی weight is to be carpeted. Find the total cost if the rate is 150 روپیز پر اسکوائر میٹر۔ تو اس سیکوز میں کیا کہتا ہے؟ اس میں اس طرح کہتا ہے کہ ہمارے پاس ایک روم ہے، اور دیکھو روم کا شکل جو ہے وہ ایک ریکٹینگل ہے، مطلب اس طرح روم ہے، ایک ریکٹینگولر شیپ کا روم ہے۔ اور پھر کیا کہتا ہے کہ اس روم کا جو لینتھ ہے وہ 5 میٹر ہے۔ تو یہ لینتھ کیا ہے؟ 5 میٹر ہے، اور اس کا جو ویٹ ہے وہ 3 میٹر ہے۔ اب کیا کہتے ہیں؟ جب اس کو ہم کارپیٹ کرتے ہیں تو کارپیٹ کی اس روم کو کارپیٹ کرنے میں جو 1 میٹر اسکوائر کا جگہ جب ہم کارپیٹ کرتے ہیں، مطلب یہ 1 میٹر اسکوائر کا جگہ ہو گیا، اس کو جب ہم کارپیٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس 150 روپیز پر اسکوائر میٹر کارپیٹ کرنے میں خرچ ہوتا ہے۔ اب جب ہم تمام کمرے کو کارپیٹ کریں گے تو پھر کتنا خرچہ آ جائے گا؟ تو دیکھو اس کے لیے ہم پہلے اس کا ایریا فائنڈ کریں گے، اور پھر 150 یعنی 1 اسکوائر میٹر کارپیٹ کرنے کے خرچ کے ساتھ اس کو ملٹیپلائی کریں گے۔ تو یہ کیا ہے؟ ریکٹینگل ہے، اور ریکٹینگل کے ایریا کو ہم فائنڈ کرتے ہیں، اس کے لینتھ کو اس سے ویٹ کے ساتھ ملٹیپلائی کرتے ہیں، لہٰذا 5 کو 3 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں تو کیا آ جائے گا؟ 15 آتا ہے، 15 آتا ہے۔ اب اس کمرے کا جو ایریا ہے وہ 15 اسکوائر میٹر ہو گیا۔ آپ 15 اسکوائر میٹر کو کس سے ملٹیپلائی کریں؟ 150 سے ملٹیپلائی کریں، 150 سے ملٹیپلائی کریں، تاکہ جو بھی آنسر آ جائے وہی اس کا ٹوٹل خرچہ ہوگا۔ تو 15 جو ہے وہ 225 آتا ہے، اور 0 ساتھ میں لگاؤ تو لہٰذا 2250 آ جائے گا۔ سو اس میں جو کریکٹ آپشن ہے وہ آپشن ڈی ہے، کہ اس میں جو ٹوٹل خرچ آتا ہے سارے کمرے کو کارپیٹ کرنے میں وہ 2250 روپے ہے۔ ایم سی کیو 26 میں کہتا ہے فائنڈ دا ویلیو آف وائی وچ بیلنس دا ایکویشن۔ اب اس میں یہ کیا ہے؟ ایک الجبر کا ایکویشن دیا گیا ہے۔ اس میں کہتے ہیں کہ 4y - 2.5 = 5.5۔ اس میں وائی ویریبل وائی کا ویلیو فائنڈ کریں۔ تو دیکھو یہ تو بھی سمپل ہے، ہم کیا کریں گے؟ اس کو
इसके साथ हम इस तरह करेंगे कि कांस्टेंट को एक साइड पे पर ले जाएंगे, और और जिस के साथ वेरिएबल है उसको एक साइड पर करेंगे। तो देखो 4y ये -2.5 है, तो ये इस साइड से जाकर दूसरी साइड पर ये प्लस हो जाएगा, लिहाजा वहाँ पर ये 5.5 उसके बाद +2.5 हो जाएगा। तो लिहाजा हम डायरेक्टली प्लस करते हैं 2.5, तो क्या गया 5 5 10 5 2 7 and 1 8। अब 8 आ गया, तो इक्वेशन किस तरह बन गया, इक्वेशन इस तरह बन गया कि 4y = 8। अब क्या करें, y की वैल्यू को फाइंड करते हैं, तो क्या करेंगे, y को अकेला छोड़ेंगे। अब ये 4 जो है y के साथ मल्टीप्लाई होता है, लिहाजा उसके साथ पर जाकर ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 8 को 4 से डिवाइड करी तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, लिहाजा y = 2। सो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है 2, और इसमें ये डी वाला था। MCQ नंबर 27 में कहता है द सीट Q = WXYZ हैज़ अ प्रॉपर सबसीटो, कि क्या है, एक सीट है, इसमें कितनी इससे और क्या कितनी प्रॉपर सीट बनते हैं। तो देखो जब भी हमारे पास कोई सीट हमें देता है और उसमें अरकान होते हैं, तो उसकी प्रॉपर सीट की तादाद को फाइंड करने के लिए हमें शॉर्टकट फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, वो है 2n। अब n से मुराद है कि इस Q वाली सीट में कितने अरकान हैं। तो देखो इसमें y x2 y जो है 3 z 4, लिहाजा इसमें कितने अरकान हैं, 4 अरकान हैं। तो 2 पर हम क्या लेंगे, n की जगह हम 4 लिखेंगे। तो 2 को 4 मरतबा मल्टीप्लाई करी, 2n2 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 2, तो क्या है 2 2 4 4 2 8 8 2 16, लिहाजा इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 16। करेक्ट ऑप्शन इज डी। MCQs 28 में कहता है 1.9 into 1.9 ज़रबी 2 + 2.3 ज़रबी 3.6 1.2 + 1.4। ये क्या है, ये क्वेश्चन जो है ये बोर्ड मसरूल के ज़रिए होता है। बोर्ड मसरूल ये कहता है, मैं सिंपल आप लोगों को बोर्ड मसरूल लिखूँगा, बोर्ड मास रूल। इस रूल के मुताबिक जब भी इस तरह क्वेश्चन आ जाए तो उसको हम किस तरह हल करेंगे, उसमें पहले जो ब्रैकेट होता है उसको हम हल करेंगे। लिहाजा यहाँ पर जो ब्रैकेट दिया गया है 1.2 छोटा ब्रैकेट जो होता है उसको तो क्या करेंगे 1.2 + 1.4 करेंगे, 1.2 को 1.4 से जमा करेंगे। इसके बाद हम डिवीज़न करेंगे, यहाँ पर तो डिवीज़न नहीं है। फिर इसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो मल्टीप्लिकेशन तो क्या करेंगे 1.2 + 1.4 को प्लस करेंगे, फिर इसी 3.6 को माइनस करेंगे, फिर उसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2.3 वाला, और फिर लास्ट में फिर ही मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे। सो अगर आप लोग इसको कॉपी पर हल करें तो इससे जो करेक्ट ऑप्शन हमें मिलता है वो ऑप्शन नंबर ए है 4.37। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। MCQ 29 में कहता है कि अवैस हैज़ 40 कैंडीज, ही गेव 3/5 ऑफ इट टू मुजाहिदो, मुजाहिद गेव 1/8 ऑफ हिज ओन शेयर टू हिज यंगर ब्रदर, हाउ मच कैंडीज मुजाहिद ब्रदर गाट। अब ये MCQ जो है ये ज़रा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन आसान है। ये कहते हैं कि हमारे पास मुजाहिद एक लड़का है, उसके पास टोटल कैंडीज़ कितनी थी, 40 कैंडी। अब उसने 40 कैंडीज़ में से 3/5 को किसको दिया, सारी अवैस एक लड़का था जिसके पास 40 कैंडीज़ थी, और उसने 3/5 कैंडीज़ को मुजाहिद को दी। अब देखो मुजाहिद को उसने कितनी कैंडीज़ दी है, तो उसको हम इस तरह मालूम करेंगे 40 × 3/5। अब 5 8 48 × 3 8 ज़रबी 3 क्या आता है 24, लिहाजा अवैस ने मुजाहिद को 40 कैंडी दी। अब क्या कहता है मुजाहिद ने फिर मज़ीद 1/8 1/8
आउट ऑफ हिज ओन शेयर टू हिज यंगर ब्रदर। अब मुजाहिद ने अपनी 24 कैंडीज़ में से मज़ीद 1/8 कैंडीज़ अपने यंगर ब्रदर को दी। अब कहते हैं कि मुजाहिद के ब्रदर ने कितनी कैंडीज़ हासिल की। तो देखो अब वो एक मुजाहिद के ब्रदर ने 1/8 मतलब 1/8 कैंडीज़ हासिल की है, लेकिन ये 1/8 कैंडीज़ 24 में से कितनी है। लिहाजा हम फिर से वही फिनोमेनन इस्तेमाल करेंगे कि 24 इंटू 1/8 8 3 24। अब 3 इंटू 1 लिहाजा 3। अब मुजाहिद के ब्रदर ने सिर्फ 10 कैंडीज़ हासिल की। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी 3 कैंडीज़। मुजाहिद के ब्रदर ने 3 कैंडीज़ हासिल की। MCQ 30 में कहता है सम ऑफ द हाइट ऑफ बुशरा एंड साजिदा इज 3.3 इफ द हाइट ऑफ साजिदा इज 1.5 फाइंड द रेशो बिटवीन देयर हाइट्स। अब इसी MCQ में कहते हैं कि साजिदा और बुशरा दो लड़की है जिनकी हाइट का सम 3.3 मीटर है। अब कहते हैं कि अगर साजिदा का हाइट 1.5 हो जाए तो फिर उन दोनों के दरमियान रेशो फाइंड करें। तो अब साजिदा की हाइट तो हमें मालूम है, लेकिन बुशरा की हाइट हमें मालूम नहीं है। लिहाजा बुशरा की हाइट के साथ हम इस तरह करेंगे कि हम टोटल हाइट से यानी 3.3 से साजिदा वाला हाइट माइनस करेंगे। लिहाजा जो बाकी बचा वही बुशरा का होगा। तो इसे क्या आता है 13 5 8 1.8। सो लिहाजा बुशरा का हाइट कितना हो गया 1.8 हो गया। अब इनके दरमियान रेशो को फाइंड करेंगे किस तरह। तो इस तरह कि 1.8 ये किसका है बुशरा का है और 1.5 किसका है ये साजिदा का है। अब इन दोनों में रेशो फाइंड करेंगे। तो अगर हम इस सिंपल मतलब पॉइंट को अगर इशारे को हम इग्नोर करेंगे तो इससे हम इस तरह कर सकते हैं कि 3 पर 3 6 3 चक्की 18 और 3 पंजे 15। सो 6 रेशो 5 हो। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। MCQ नंबर लास्ट 31 में कहते हैं कि ए ब्रैकेट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी रिप्रेजेंट द लॉ ऑफ होल नंबर। कि ये किस लॉ होल नंबर के किस लॉ को रिप्रेजेंट करता है। तो देखो ये जो है हमारे पास कौन सा लॉ है, ये हमारे पास वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, ये वही लॉ है। इसमें ये करेक्ट था और इसमें ये डी वाला करेक्ट था और इसमें 3 कैंडीज बी वाला करेक्ट था और इसमें ए वाला करेक्ट था और इसमें से 16 डी वाला करेक्ट था और इसमें से 2 बी वाला करेक्ट था और इसमें से डी 2250 वाला करेक्ट था। अच्छा तो नेक्स्ट MCQ 32 में कहता है वो अल्फाज जो आवाज़ में एक जैसे हो लेकिन तहरीरी लिहाज से मुख्तलिफ हो क्या कहलाते हैं। कि ऐसे अल्फाज हो जो आप जो आवाज़ में एक जैसे हो लेकिन तहरीरी लिहाज से मुख्तलिफ हो, तो ऐसे अल्फाज को हम क्या कहते हैं, ऐसे अल्फाज को हम मुतशाबे अल्फाज कहते हैं। लिहाजा करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन जीम मुतशाबे अल्फाज। MCQ 33 में कहता है मुझे पेशावर जाना है, दी गई जुमले में मस्तर है। इस जुमले में मस्तर क्या है। तो देखो जुमले में एक क्या होता है, एक इसम होता है, एक उसके बाद जो फ़ेल और मफ़ऊल होते हैं उसको हम क्या कहते हैं मस्तर कहते हैं। अब इसमें मस्तर जाना, ये जाना क्या है, ये मस्तर है। लिहाजा करेक्ट ऑप्शन इज जिम जाना। MCQ 34 में कहता है वो इसम जो कोई सवाल करने या पूछने के लिए इस्तेमाल हो। तो ऐसे इसम जो किसी सवाल जो कि एक जुमले में सवाल करने के लिए इस्तेमाल किया गया हो, तो लिहाजा इसको हम क्या कहते हैं, इसमें इस्तिफहाम, इंग्लिश में उसको हम इंटरोगेटिव कहते हैं। MCQ 35 में कहता है आई डोंट नो द ट्रूथ, ये इंग्लिश का MCQ है। आई डोंट नो द ट्रूथ सेलेक्ट द ऑक्सिलरी वर्ब इन द सेंटेंस। तो देखो इस सेंटेंस में हमारे पास हो ये आई जो है ये क्या है, ये सब्जेक्ट है और नो जो है क्या है, ये मेन वर्ब है और ट्रुथ जो है वो तो ऑब्जेक्ट है। इसमें जो डू है वो ऑक्सिलरी वर्ब है। लिहाजा करेक्ट ऑप्शन इज ए। MCQ 36 में कहते हैं हो रोड द पोएम लिटिल थिंग्स। देखो ये आप लोगों की जो इंग्लिश है और तकरीबन मेरे ख्याल में ये और कोर्स का इंग्लिश था, उसमें एक पोएम एक शायरा
जूलिया कर्नी जिसका नाम था, उसने लिखा था लिटिल थैंक्स एंड लिटिल ग्रेन मेक द माइट ओशन, इस तरह का कोई पोएम था। तो ये किसने लिखा था? ये जूलिया कर्नी। एमसीक्यू नंबर ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट, जूलिया कर्नी। एमसीक्यूज 37 में कहता है आई थिंक शी इज अ रशियन और इंग्लिश। चूज द करेक्ट ट्रांसलेशनल डिवाइस, तो इसमें कौन सा ट्रांसलेशनल डिवाइस करेक्ट इस्तेमाल होता है? तो देखो इसमें जो ट्रांसलेशन डिवाइस इस्तेमाल होता है वो है आई थिंक शी इज़ आइदर रूसियन, आई थिंक शी इज़ आइदर रशियन और इंग्लिश। सो करेक्ट ट्रांसलेशन डिवाइस इज आइदर बी। एमसीक्यूज 38 में कहता है, ये वाला एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज 38 ये वाला एमसीक्यूज है। ही ड्रैंक द स्ट्रॉबेरी जूस ग्रीडली, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन एडवर्ब। तो ये ग्रीडली जो है ये अंडरलाइन किया गया है, ये एडवर्ब है, लेकिन ये कौन सा एडवर्ब है? देखो ये हमारे पास हो ग्रीडली, चूंकि एक इंसान की मैनर, इंसान के कैरेक्टर को शो करता है। और इसके अलावा आप लोग ये भी याद रखें कि हमारे पास जिन एडवर्ब के आखिर में LY आ गया हो तो वो एडवर्ब अक्सर वो एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं। और ये आप लोग ख़ुद भी मुलाहिजा कर सकते हैं कि ये इंसान के मैनर को डिनोट करते हैं, लिहाजा ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। एमसीक्यूज 39 में कहते हैं विच द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन। तो दरअसल झील में से कौन सा एक कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 के प्रोडक्शन का सोर्स नहीं है? तो देखो रेस्पायरेशन जो है इसमें तो जाहिर सी बात है कि CO2 प्रोड्यूस होता है। ऑप्शन सी में वोल्केनिक एरप्शन जो है उसमें भी CO2 पैदा होता है क्योंकि वहाँ पर बर्निंग हो रहा होता है। ऑप्शन डी डिकेइंग प्लांट्स एंड बैक्टीरिया, तो जब डिके हो रहा है प्लांट और बैक्टीरिया डिके हो रहे हैं ना, तो उस वक्त तो प्लांट तो ऑर्गेनिक मैटर है ना, मतलब उसमें कार्बन होता है, लिहाजा उससे कार्बन रिलीज होकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। लिहाजा एक ऑप्शन फोटोसिंथेसिस जो एक ऐसा अमल है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होने के बजाय इंस्टेड ये इस्तेमाल होता है, लिहाजा करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी फोटोसिंथेसिस। एमसीक्यूज 40 में कहता है सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच ऑल द मेंबर अंडरगोज सब्लिमेशन प्रोसेस। अब देखो सब्लिमेशन प्रोसेस क्या होता है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक सॉलिड जो है वो डायरेक्टली वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट मतलब आमतौर पर हमारा इस तरह मामूल है ना, जब हम आइस जानते हो ना, बर्फ़ को हम मेल्ट करते हैं या कोई और चीज़ हो, कोई आयरन हो, जब उसको हम हीट देते हैं तो वो सॉलिड से पहले लिक्विड में जाता है, फिर जब हम मज़ीद हीट देते हैं तो फिर वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन ये वाहिद सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि बाज़ सॉलिड में होता है जो जिसके नतीजे में सॉलिड लिक्विड स्टेट की से पास होने के बजाय डायरेक्टली गैस में चेंज होता है। तो ये कौन सी सॉलिड है? तो देखो ये हमारे पास जो आयोडीन है, ऑप्शन ए में आयोडीन तो बिल्कुल सब्लिमेशन करता है। नेप्थलीन जो है वो भी करता है, अमोनियम क्लोराइड भी करता है। ऑप्शन बी में जो अमोनियम क्लोराइड तो करता है लेकिन वाटर नहीं करता, वाटर तो लिक्विड है। ऑप्शन सी में सैंड शुगर सोल्यूशन, अब शुगर सोल्यूशन जो है ये नहीं करता। ऑप्शन डी में अगेन वाटर काला पता है, साल सोल्यूशन काला पता है, लिहाजा ये नहीं करता सब्लिमेशन को। जो वाहिद ऑप्शन ए है उसमें आयोडीन, नप्थलीन, अमोनियम क्लोराइड ये सभी सब्लिमेशन करता है, लिहाजा करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। MCQs 41 में कहता है द सेपरेशन टेक्निक विच इन्वॉल्व सॉल्वेंट मूविंग ओवर अ पोरस एब्जॉर्बेंट मीडियम टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट। तो देखो ये हमारे पास जब एक सोल्यूशन को हम सेपरेट करते हैं, उससे हम सॉल्यूट को सेपरेट करते हैं, मतलब हमारे पास एक सोल्यूशन है उसमें सॉल्यूट हो गए, सॉल्वेंट हो गई, तो उस सॉल्यूशन से जब हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट से सेपरेट करते हैं और एक ऐसे मेथड के ज़रिए जिसमें हम एक पेपर इस्तेमाल करेंगे और वो पेपर क्या होगा, वो पोरस पेपर होगा। मतलब ये है कि पेपर के ऊपर पेपर में मतलब छोटी छोटी सुराख होगी जिससे सॉल्वेंट डायरेक्टली पास हो जाएगा, जबकि वो सॉल्यूट जो है वो ऊपर रह जाएगा। तो ऐसे मेथड को हम क्या कहते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल ये एक पेपर है और इसमें छोटे छोटे सुराख होते हैं, छोटे छोटे
جس میں سالوٹ جو ہے نا، سالوینٹ جو ہے وہ پاس ہوتا ہے، جبکہ سالوٹ ہو جو ہمارے پاس چینی ہوگا یا اس طرح کچھ ہوگا، سالوٹ پاس نہیں ہوگا لیکن سالوینٹ پاس ہوگا۔ تو اسی میتھڈ کو ہم کرومیٹوگرافی کہتے ہیں، اس کو ہم، اور خاص کر اس کو ہم کیا کہتے ہیں، پیپر کرومیٹوگرافی۔ جب ہم ایک پیپر کو استعمال کریں گے تو پھر اس کو پیپر کرومیٹوگرافی کہتے ہیں۔ ایم سی کیوز 42 میں کہتے ہیں، the layer of atmosphere in which we live is called troposphere. thickness of troposphere is about. تو ٹروپوسفیئر کا thickness کتنا ہے؟ تو دیکھو ٹروپوسفیئر کا thickness جو ہے وہ 7 مائلز ہے۔ کریکٹ آپشن از ڈی۔ ایم سی کیوز 43 میں کہتے ہیں، ایئر contain the rare gases in very small fraction. among the rare gases which is present in air is maximum amount of 0.9% by volume of the air helium. تو دیکھو یہ گیسز کے کنسنٹریشن کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے پاس جو نائٹروجن ہے وہ ایئر میں تقریباً 78.1% ہوتا ہے، جبکہ آکسیجن جو ہے وہ 20.9% ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس ریئر گیسز جس کو ہم کہتے ہیں، باقی جو پرسن بچتا ہے نا وہ ریئر گیسز بناتا ہے، مطلب تقریباً 1% ہوتا ہے، تو وہ ریئر گیسز سے بنا ہوا ہوتا ہے۔ لیکن ریئر گیسز میں سب سے زیادہ والا گیس 0.9% جو کہ ایٹماسفیئر میں پایا جاتا ہے، تو اس گیس کو ہم کیا نام دیتے ہیں؟ تو اس گیس کو ہم آرگان کا نام دیتے ہیں، جو کہ ایک نوبل گیس ہے۔ تو یہ تھی ہمارے پاس 43 تک ایم سی کیوز 2022 والے پیپر کا، اوریجنل پیپر کا۔ سو آئی ہوپ آپ لوگ بہت زیادہ آپ لوگوں کی تیاری جاری ہوگی۔ سو وش یو بیسٹ آف لک، ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہی، لائک کرنا، سبسکرائب کرنا، شیئر کرنا مت بھولی۔ سی یو نیکسٹ ٹائم ود دا نیکسٹ لیکچر، والسلام۔